Hey everyone, welcome back to another video. Today is day 2 of 75 days coding challenge and we are going to discuss bind, call and apply methods. We'll also cover their polyfills. But if you haven't watched my last video which was on this keyword, then go and see it. I have attached the link in the description because it does not make any sense to learn bind, call and apply methods without the knowledge of this keyword. So you must go and see it and then come back here and we'll discuss bind, call and apply, right? So let's start with bind, call and apply. Let's see how their current implementation working, and then we will go through their polyfills. So let me create a object in which I will say my first name is Shubham and my last name is Rohila. Okay, and I have one print name function which will take country as parameter and it will console log my statement I am this dot first name, this dot last name, and from country, whatever country I'm providing to this function. So let's say I need to print, I need to use this function for multiple objects. One thing I can do that I can, add this function to the property of the object and make use of implicit binding, which we discussed in the last video. So if I call this with the help of person object, here the call site will be my person object. So this, in the function, the value of this will be this person object. So it will work fine. Let me show it to you. Let me pass country also. So this is printing fine. But here the problem is I am notating the object and also, attaching this function. So I will need to attach this function on every object, right? In order to use it. So we don't want to use it like this. So what else JavaScript have provided? They have provided 3 methods: call, bind and apply. Okay. So मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, इन कॉल मेथड मैं करना चाहता हूँ कि मैं फोर्सफुली दिस की वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि आप सब कुछ छोड़िए, जो मैं दिस की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका यूज कीजिए एंड कॉल दिस फंक्शन. ओके, एंड अप्लाई द डिफरेंस इज call the first argument it will take the value of this keyword and the other arguments it will take multiple arguments comma separated. But in apply methods, the second argument will be an array of arguments. Let me show you. So if I use the call method on print name dot call, value of this I need to provide. जो पहली आर्गुमेंट रहेगी वो वैल्यू ऑफ दिस, कि मेरा जो दिस है इसमें पर्सन को यूज कीजिए. सेकेंड आर्गुमेंट आई कैन प्रोवाइड इंडिया. ओके, आई कैन प्रोवाइड मल्टीपल आर्गुमेंट्स यहाँ पे. ठीक है, वो सभी जो भी फंक्शन है इसको सभी आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे. बट यहाँ पर मुझे एक ही आर्गुमेंट चाहिए तो मैं एक ही यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो इट विल ऑल्सो वर्क फाइन. अभी भी ये सही चल रहा है. अभी मैं करता हूँ अप्लाई मेथड का यूज. अप्लाई मेथड में मुझे सेम फर्स्ट आर्गुमेंट सेम रहेगी, लेकिन सेकंड आर्गुमेंट जो मैं पास करूंगा वो एरे ऑफ आर्गुमेंट्स रहेगा. तो यहाँ पर मुझे एक ही भेजनी है, लेकिन वो मुझे एरे में इन द फॉर्म ऑफ एरे भेजनी होगी, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन. बाइंड मेथड जो यूज होता है वो हार्ड बाइंडिंग के लिए होता है. वो एट द मोमेंट जब हम इसको यूज कर रहे हैं तब फंक्शन कॉल नहीं करेगा. ओके, इंस्टेड इट विल रिटर्न द फंक्शन. इट विल रिटर्न द फंक्शन. उसको बाइंड करके ये आप लेटर पॉइंट ऑफ टाइम कॉल कर सकते हो, ये बोल रहा है. बिकॉज लेकिन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप कॉल करोगे, मैं उसे स्टैंड अलोन फंक्शन की तरह कॉल कर रहा हूँ, लेकिन बाइंड ने ऐसा हार्ड बाइंडिंग कर दिया है कि हम उसे कैसे भी कॉल करें, इंटरनली उसका जो
दिस कीवर्ड है वो पर्सन से ही अटैच रहेगा। अगर मैं इसको ओवरराइड भी करना चाहूँ, लेट्स से विंडो ऑब्जेक्ट, ये ओवरराइड नहीं होगा। लेट मी शो इट टू यू। ओके, लेट मी पास द कंट्री ऑल्सो। देखो अभी भी ओवरराइट नहीं हो रहा बिकॉज विंडो पे तो कोई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये चल रहा है हमारा। So this is working fine. That's the difference between call and bind method. तो ये अभी हमने सीख लिए हैं. Let's discuss their polyfills. Okay. Polyfill of apply method हम डिस्कस कर लेते हैं पहले. ठीक है. Okay. Apply method. पहले हम टारगेट देखते हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमें करना क्या है, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट नेम डॉट अप्लाई, दिस की वैल्यू भेज रहे हैं पर्सन, एंड यहां पर आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं इंडिया, राइट. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस केस में, हमारा ऑब्जेक्टिव है मेन कि प्रिंट नेम फंक्शन कॉल होना चाहिए. ओके. और उसमें जो दिस की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए पर्सन ऑब्जेक्ट, राइट. तो यहां पर हम इम्प्लिसिट बाइंडिंग का यूज करते हैं. इम्प्लिसिट बाइंडिंग का यूज करके देखते हैं. मान लेते हैं अगर मैं इम्प्लिसिट बाइंडिंग के थ्रू यूज करूं, मान लेते हैं अगर मैं पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड कर दूं किसी भी नाम से, ठीक है, कोई यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक की के नाम से कोई भी यूनिक की, ओके, उसकी मैं वैल्यू दे दूं प्रिंट नेम, जो कि मेरा फंक्शन है, ओके. और अब अगर मैं इसको कॉल करूं, राइट, पर्सन को यूनिक की को कॉल करूं, ओके, कॉल करूं, तो यहां पर मेरे इम्प्लिसिट बाइंडिंग का यूज होगा बिकॉज मैं यहां पर मेरा कॉल साइट रहेगा पर्सन, ठीक है. और तो प्रिंट नेम फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू हो जाएगी पर्सन, राइट. तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा. मैं यहाँ पर इम्प्लिसिट बाइंडिंग का यूज करके इसका पॉलीफिल बनाऊंगा. तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है. पहला स्टेप है, हमें जो एज केसेस भी कवर करने हैं साथ के साथ. तो पहला स्टेप है कि जो मेरा दिस की वैल्यू है वो मेरा अगर नल या अनडिफाइंड है, राइट, अगर नल है या अनडिफाइंड है तो मैं इसकी जगह क्या यूज कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं बिकॉज डिफॉल्ट बाइंडिंग में विंडो ऑब्जेक्ट यूज होता है ब्राउजर में, तो मैं विंडो यूज कर सकता हूँ क्योंकि अगर इम्प्लिसिट बाइंडिंग नहीं चल रही है तो वी आर बैक टू डिफॉल्ट बाइंडिंग, राइट. तो नल है तो मैं विंडो यूज बना दूंगा इसको, दिस कीवर्ड को, राइट, दिस को. और अगर कोई प्रिमिटिव टाइप है, क्योंकि यहाँ पर हमारा यूजर जो है वो प्रिमिटिव टाइप ही सेंड कर सकता है एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, जो कि मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकता हूँ. वो उनके जो भी उनके रैपर हैं, रैपर क्लासेस है, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, इनके रैपर क्लासेस में उनको बॉक्सिंग कर देंगे नॉर्मल नंबर को, ठीक है. नॉर्मल जो प्रिमिटिव टाइप है उनकी बॉक्सिंग होके वो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है. यहाँ पर ये समझ आ गया. फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया. अब हमें सेकंड पॉइंट है, हमें यूनिक की क्रिएट करना है. यूनिक की क्रिएट कर सकते हैं. यूनिक की के लिए हमें सबसे पहले या तो हम सिंबल यूज कर सकते हैं. सिंबल अगर अवेलेबल नहीं है, किसी सपोर्ट नहीं कर रहा कोई ब्राउजर, तो उसकी जगह हम math.random भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि हम सिंबल यूज करें जो कि हमें हर टाइम यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा. फिर क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, फिर हमें चेक करना है कि जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, अगर उसमें कुछ आ रहा है, अगर उसमें कुछ नहीं आ रहा, इफ सेकंड आर्ग्यूमेंट इज एम्प्टी, इफ आर्ग इज एम्प्टी, ओके, तो हमें जो कॉल करना है यहाँ पर फंक्शन वो एम्प्टी, कोई आर्ग्यूमेंट सेंड नहीं करनी. और अगर आर्ग्यूमेंट एरे नहीं है, इज नॉट एन एरे, राइट, तो हमें एरर थ्रो करना है. एरर थ्रो कर देंगे बिकॉज अप्लाई में क्या होता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट मस्ट बी एन एरे.
और फिर चेक करेंगे अगर एरे है तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स निकाल के हम आगे सेंड कर देंगे, सेंड टू द फंक्शन। ओके। फोर्थ है, जो हमने यूनिक की ऐड की है उसको रिटर्न रिजल्ट वापस भेजने से पहले हमें डिलीट करना पड़ेगा, राइट? नहीं तो यूजर को मुटेट ऑब्जेक्ट दिखेगा, वहां पर हम उसका ऑब्जेक्ट चेंज कर चुके होंगे। डिलीट दी यूनिक की ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये हमें, बिकॉज पॉलीफिल हमें समझ के करना होगा। अगर आप रट्टा लगाओगे तो आपको बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो याद नहीं रहेगा और आप किसी भी टाइम भूल सकते हो। तो यहाँ पर हमने अच्छे से समझा कि हमें क्या कैसे करना है। अब हम इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है? ये चीज याद रखिए आप, जब भी हम पॉलीफिल क्रिएट करते हैं तो हमें पहले चेक करना है कि उस नाम से कोई फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तभी हमें उस नाम से पॉलीफिल बनाना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर मैं माई अप्लाई के नाम से बना रहा हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट मैं ले रहा हूँ दिस आर्ग, ओके। दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं जो आर्ग्स ले लेता हूँ जो कि एक एरे है, राइट? ना पहला स्टेप क्या है हमारा, हमें पहले नल का चेक देखना है और प्रिमिटिव का, ठीक है? तो पहले मैं देख लेता हूं दिस आर्ग अगर मेरा नल है, ओके, तो मैं विंडो यूज कर लेता हूं। अभी मैं ब्राउजर के लिए सपोर्ट दे रहा हूं, अगर किसी नोड.जेएस का एनवायरनमेंट है तो वहां पर आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। विंडो ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने, और अगर कोई प्रिमिटिव टाइप है तो मैं उसको कन्वर्ट कर दे रहा हूं ऑब्जेक्ट के रैपर में, ठीक है? तो आई थिंक ये मैं अपडेट कर दिया मैंने फर्स्ट पॉइंट, कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट नल है तो उसे अपडेट कर दिया, और प्रिमिटिव को भी, अगर कोई प्रिमिटिव नहीं भेजा, अगर रियल ऑब्जेक्ट भेजा है तो तब भी वो ठीक रहेगा। यहाँ पर मैंने जस्ट एज ए रैपर लगा दिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यूनिक की क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। FN की क्रिएट कर लेता हूँ। अगर मेरा टाइप ऑफ, मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर सिंबल को सपोर्ट कर रहा है मेरा ब्राउजर, ठीक है, तो मैं सिंबल यूज कर लेता हूँ FN, नहीं तो मैं कोई भी स्ट्रिंग को जोड़ लेता हूँ मैं math.random से, कोई भी रैंडम की बना लेता हूँ जो कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट नहीं करती होगी, राइट? तो सेकंड पॉइंट भी मेरा हो गया है। अब मैं थर्ड पॉइंट पे जाता हूँ कि अगर मेरा आर्ग एम्प्टी है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ इफ माई जो आर्ग है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नल या अनडिफाइंड है, इफ आर्ग्स, तो मैं जो कॉल करता हूँ पहले मुझे अटैच करना होगा ना, राइट? ये इस पे दिस आर्ग पे मैं FN की के साथ फंक्शन की वैल्यू अटैच कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर करंटली इस माई अप्लाई के अंदर दिस की वैल्यू जो रहेगी, जो कि मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं प्रिंट नेम डॉट अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लिसिट बाइंडिंग है, प्रिंट नेम के थ्रू मैं अप्लाई को कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो दिस की वैल्यू आएगी वो प्रिंट नेम आएगी। तो वही मैंने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में ऐड कर दिया, राइट? तो अभी मैंने ये कर दिया है। अब मैं आर्ग्स चेक कर लिया मैंने, अगर मैं रिजल्ट की वैल्यू भी मुझे स्टोर करनी होगी, राइट? तो रिजल्ट मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पर रिजल्ट है। अगर मेरा आर्ग्स सेकंड आर्गुमेंट मेरा नल या वो है तो मैं इसको एम्प्टी, मुझे कोई आर्गुमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी नल या डिफाइंड है। सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरा आर्ग्स एरे चेक करना है ना, राइट? मुझे इज एरे इज नॉट एन एरे, ओके। अगर एरे नहीं है तो मैं थ्रो कर देता हूँ एरर, सेकंड आर्गुमेंट मस्ट बी एन एरे, राइट? बिकॉज सेकंड आर्गुमेंट मैंडेटरी है एरे होना, और अगर वो एरे है तो मैं उसको कॉल कर दूंगा दिस आर्ग FN की, और जो मेरा
आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको मैं इसमें स्प्रेड कर दूंगा ताकि वो आर्ग्यूमेंट्स कोमा सेपरेटेड चली जाए। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया। अब मुझे रिटर्न करना है रिजल्ट, बट रिटर्न रिजल्ट से पहले मुझे डिलीट करना होगा जो भी ये हमने ऐड किया है प्रॉपर्टी, या डिलीट करना होगा। तो आई थिंक दिस इज इट। हमने सब जो भी पॉइंट डिस्कस किए थे वो सब कर लिए हैं। लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग फाइन on this object itself. I will see print name dot call print name dot my apply, right? my apply person object मुझे सेंड करना है, साथ में मुझे आर्गुमेंट भेजनी है an array, right? Yeah, this is working fine with my apply also. Let me remove मैं सेकंड आर्गुमेंट को array की जगह string करके भेजता हूँ। It is throwing right. It is throwing the error. Second argument must be an array. So I think we are on the right path. This is good. Okay. So apply method is done. Let me, now the difference, हम अभी कॉल का कर लेते हैं सेम चीज। कॉल के लिए हमें सेम ही चीज करनी होगी, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा ना कि जो कॉल के अंदर मैं जो बनाऊंगा फंक्शन, उसके अंदर मैं माई अप्लाई यूज कर लूंगा, बिकॉज यहाँ पर मुझे सेम चीज लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मेरा इफ नहीं आएगा, मुझे तो असाइन करना है, राइट? यहाँ पर फंक्शन बनाना है, सेम चीज आएगी, दिस आर्क, दिस की वैल्यू आएगी यहाँ पर, लेकिन मेरे पास मल्टीपल आर्क्स रहेंगी। ठीक है, मल्टीपल आर्क्स आ गई मेरे पास। यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा दिस डॉट माई अप्लाई, दिस आर्क की वैल्यू मैं भेज दूंगा और आर्क्स को मैं एज एन एरे भेज दूंगा। तो ये मेरा जो कॉल का पॉलीफिल हो गया। अगर आपसे इंटरव्यू में डायरेक्टली कॉल का पॉलीफिल पूछने की बात हो रही है तो आप ये वाली इम्प्लीमेंटेशन उधर पुट कर सकते हैं। एरे की जगह आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं कि जो सेकंड आर्गुमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, उसे आई मीन एज एन एरे लेके इंटरनली यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे भेज सकते हो। तो ये मैंने शॉर्टकट किया यहाँ पर बिकॉज मैं ऑलरेडी सेम इम्प्लीमेंटेशन लिख चुका हूँ। लेट मी चेक इफ इट इज वर्किंग फाइन। माई कॉल, यहाँ पर मैं पर्सन भेजने वाला हूँ, सेकंड आर्गुमेंट मुझे एरे नहीं भेजना है, कॉमा सेपरेटेड है, सो इट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। ठीक है, सो वी आर गुड। लास्ट बाइंड मेथड, ये था हमारा कॉल मेथड, राइट? बाइंड का पॉलीफिल, तो बाइंड का पॉलीफिल थोड़ा अलग है इन दोनों से। अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू। पहले हमने बाइंड का सेम चीज कर लिया, अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया प्रोटोटाइप डॉट माई बाइंड फंक्शन मैंने पकड़ लिया। फर्स्ट वैल्यू आएगी दिस डॉट आर्ग, सेकंड आएगी जो भी हमारी आर्ग्यूमेंट्स आ रही हैं, राइट? कुछ भी मैं भेज सकता हूँ, कोमा सेपरेटेड। यहाँ पर मुझे करना है फंक्शन रिटर्न, राइट? मुझे फंक्शन रिटर्न करना है क्योंकि बाइंड मेथड फंक्शन रिटर्न करता है जो हम बाद में कॉल करेंगे, और उस जो फंक्शन में रिटर्न कर रहा हूँ उसमें भी मैं अदर आर्ग्स भेज सकता हूँ, राइट? लेकिन यहाँ पर मुझे जो फंक्शन है जहां से मैं बाइंड को कॉल कर रहा हूँ वो स्टोर करना पड़ेगा इस फंक्शन को रिटर्न करने से पहले, बिकॉज इस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू अलग रहेगी इसके अंदर, और यहाँ पर जो दिस की वैल्यू है वो वही फंक्शन रहेगा जो कि मैं बाइंड के लिए यूज कर रहा हूँ, राइट? तो वो यहाँ पर मैं दिस की वैल्यू फैच कर लूंगा और इसको मैं अंदर यूज कर लूंगा। अंदर मैं कैसे यूज करूंगा? अंदर मैं रिटर्न कर सकता हूँ कि जो भी मेरा फंक डॉट माई माई अप्लाई का यहाँ पर यूज कर सकता हूँ दिस आर्ग पहले, और दोनों आर्गुमेंट्स को मैं जो भी मेरी आर्ग्स हैं वो और दोनों को मैं स्प्रेड करके, बिकॉज दोनों मुझे उस फंक्शन को भेजनी पड़ेगी। मैं यहाँ से भी आर्गुमेंट्स भेज सकता हूँ और जो मैं फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ बाद में उसको कॉल करूंगा वहां पे भी मैं आर्गुमेंट्स भेज सकता हूँ। तो दोनों को मैंने स्प्रेड कर लिया एक एरे में और वो अप्लाई में भेज दिया। तो अगर आप देखोगे
हर कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन पूरी नहीं है। जो हमारा यूज केस है वो चल जाएगा इस इम्प्लीमेंटेशन से। लेट्स सी, प्रिंट नेम डॉट बाइंड माई बाइंड आई विल यूज, और मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया पर्सन, राइट। अब मैंने इसको स्टोर कर लिया पी में। अब मैं पी को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इंडिया नहीं भेजा तो इंडिया भेज देता हूँ यहाँ पर, या कहीं पर भेज सकता हूँ, सेम चीज़ है। यहाँ पर अभी चल रहा है, राइट। यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ पर भेज सकता हूँ, बिकॉज जो मैं आर्ग्यूमेंट्स है उन दोनों को मैं स्प्रेड करके मिला के आगे भेज रहा हूँ। सो इट इज वर्किंग फाइन, दिस वन इज फॉर आवर यूज केस। लेकिन बिकॉज यहाँ पर बाइंड मेथड मेरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब मैं उस फंक्शन को मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, या मैं एक चीज है न्यू कीवर्ड के साथ भी कर सकता हूँ एज ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो उस केस में हमारा यहाँ पर इशू आ जाएगा पॉलीफिल में। लेट मी शो यू। अगर मैं इसको बाहर न्यू पी करके यहाँ पर इंडिया सेंड करूं, लेट्स से अभी क्या होता है। अभी ये सही चल रहा है, राइट। अभी ये सही चल रहा है, लेकिन आप कहोगे हाँ ये ठीक तो चल रहा है, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन दिक्कत इसमें बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने न्यू के थ्रू पी को कॉल किया है। तो पी को कॉल किया है, पी के अंदर, ठीक है, पी के अंदर जो दिस की वैल्यू होनी चाहिए वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। और उसके अंदर तो मेरा कोई फर्स्ट नेम या लास्ट नेम नहीं है। तो ये वैल्यू कहाँ से आ रही है शुभम रोहिला, कहाँ से आ रही है? ये वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो अपना बाइंड मेथड है उसके अंदर जो पॉलीफिल बनाया है उसके अंदर न्यू कीवर्ड की हैंडलिंग नहीं की है। और जो वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैंडलिंग है, जो जो हम यहाँ से बाइंड कर रहे हैं, हार्ड बाइंडिंग वाला ऑब्जेक्ट उठा रहा है। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज में बाइंड मेथड है, अगर मैं उससे रिप्लेस करूं तो उससे आप देखोगे यहाँ पर न्यू की हैंडलिंग है, क्योंकि यहाँ पर मेरा शुभम रोहिला नहीं आ रहा, यहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है। बिकॉज यहाँ पर जो पी के अंदर दिस की वैल्यू है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये हैंडलिंग भी हमें करनी होगी। और एक और चीज, यहाँ पर अगर मैं जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है मेरा, दिस बार, ओके, दिस बार इज इंस्टेंस ऑफ प्रिंट नेम, बिकॉज इंटरनली मेरा प्रिंट नेम फंक्शन कॉल हो रहा है, और जो प्रिंट नेम फंक्शन कॉल हो रहा है उसी से मेरा ये दिस जो ये बार वाला ऑब्जेक्ट है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट, वो बना है। तो यहाँ पर ये ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये हमें प्रोटोटाइपल चेन भी जो है वो हमें बना के रखनी पड़ेगी जो हमारा पॉलीफिल है उसमें। तो लेट्स सी हम इसको कैसे हैंडल करते हैं, रोज ये हैंडल करना जरूरी है। इसको हैंडल करने के लिए हमें डायरेक्टली हम दिस वी कांट रिटर्न दिस फंक्शन। लेट मी क्रिएट अ फंक्शन इनसाइड बाउंड, और मैं ये फंक्शन रिटर्न करूंगा, राइट। मैं ये फंक्शन रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे चेक करना है कि ये मेरा जो न्यू वाले कीवर्ड के साथ यूज कर रहा हूं मैं ये, या नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर जो दिस की वैल्यू है, दिस की वैल्यू एज इन जो मेरा फंक्शन है, राइट, जो भी मेरा इसके बाउंड के इनसाइड, बिकॉज यहाँ पर न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट होगा अगर मैं न्यू कीवर्ड के साथ यूज कर रहा हूँ, और जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट होगा वो इंस्टेंस ऑफ होगा बाउंड का, राइट। तो अगर वो बाउंड का इंस्टेंस होगा तो ये मैं दिस कीवर्ड के साथ यूज कर रहा हूँ। अगर बाउंड का इंस्टेंस नहीं हुआ तो यहाँ पर दिस की वैल्यू क्या रहेगी, जो मैं अटैच कर रहा हूँ, जो कि इस केस में हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर इस अगर न्यू के साथ मैं यूज कर रहा हूँ तो ट्रू आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरा इज न्यू है तो मुझे दिस कीवर्ड यूज करना है, राइट। जो मेरा एज ए बाइंड में जो मैं दिस कीवर्ड भेज रहा हूँ वो यूज नहीं करना, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट है वो यूज करना है। अदरवाइज मेरा जो दिस आर्क वाला दिस आ रहा है वो यूज करना है, ठीक है।
तो ये मैं क्रिएट कर लेता हूँ ctx एक वेरिएबल, और अब मुझे कॉल करना है जो मैं नॉर्मली कर रहा था, func डॉट अप्लाई या माई अप्लाई, जो भी हम करना चाहें, ठीक है। उसके अंदर मुझे ctx भेजना है और सेम चीज करनी है जो कि मैं args और अदर args, सॉरी args और मेरा क्या था यहाँ पर, मुझे अदर आर्क्स भी सेपरेट वो करनी पड़ेगी ना यहाँ पर, ताकि मैं उनको आगे भेज पाऊँ, राइट। सो आई थिंक दिस इज इट। बट यहाँ पर मुझे प्रोटोटाइपल चेन वाला अभी नहीं किया है मैंने। प्रोटोटाइपल चेन के लिए मुझे करना पड़ेगा कि अगर मेरा जो फंक है, बिकॉज अगर फंक का प्रोटोटाइप है मेरा, एग्जिस्ट करता है, जो मेरा दिस है, तो वो अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए मुझे बाउंड का प्रोटोटाइप भी ऐड करना पड़ेगा उसमें। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट से मैं प्रोटोटाइपल चेन बना सकता हूँ, राइट। अब आई थिंक मेरा चलेगा। आई विल शो यू द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं यहाँ पर माई बाइंड यूज कर लेता हूँ, माई बाइंड यूज कर रहा हूँ अभी। दिस इज वर्किंग फाइन। अनडिफाइंड अनडिफाइंड द सेम थिंग जो मेरा नॉर्मल बाइंड के साथ आ रही थी वही आ रही है, और इंस्टेंस ऑफ भी चल रहा है। अगर मैं ये लाइन दोनों ये कमेंट कर दूं इफ स्टेटमेंट, तो यहाँ पर देखोगे आप, जो मेरा इंस्टेंस ऑफ है ये वैल्यू फॉल्स आने लग गई, बिकॉज मैंने प्रोटोटाइपल चेन नहीं बनाई है, ठीक है। तो ये लाइन भी जरूरी है यहाँ पर प्रोटोटाइपल चेन बनाने के लिए। तो अगर आप ऐसे समझाओगे ना इंटरव्यूअर को कि मैं पॉलीफिल ऐसे बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करो कि आई एम डूइंग दिस, आई एम आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बताओगे कि मैं ऐसे कर रहा हूँ पॉलीफिल, ना कि डायरेक्टली आप रट्टा मार लिया और मैंने डायरेक्टली इंटरव्यू में जाके लिख दिया। क्या हो रहा है मुझे बिहाइंड द सीन कुछ पता ही नहीं। तो आपको ऐसे करना होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आई, बिकॉज आपको इन ऐसे वीडियोस के बाद पॉलीफिल्स को याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ के करिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड बिकॉज मोर वीडियोस will come like this. So yeah, thank you. That's all for this video. See you in the next.